Hello friends, welcome to my YouTube channel VM Agarwal Classes. So this is about my educational background. So today we will study percentage, uh, chapter 1. So percentage. So what is the meaning of percentage? First of all, we have to know that percentage means 1 by 100. This is the major fundamental meaning of percentage. Percentage symbol itself means 1 by 100. So this is the table, a table between a relationship. It is the relationship between fraction and percentage and decimal. This is very important. This is very important. We have to learn by heart from 1 to 20 at least. Fraction, relationship between fraction and percentage and decimal. So 1 by 2 equals to 50%, that is 0.5. 1 by 3 equals to 33.33%, that is 0.333, means 0.3 recurring. 1 by 4 equals to 25 percentage. 1 by 4 equals to 25 percentage, that is 0.25. 1 by 5 equals to 20 percentage, that is equals to 0.2. Similarly, 1 by 6 equals to 16.67 percentage, that is 0.1666, that is 166 is the recurring, is non-terminating decimal. 1 by 7 equals to 14.28 percentage, and in terms of decimal it is 0.1428 dash 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 because it is a non-terminating decimal. 1 by 8 equals to 12.5 percentage. Similarly, 1 by 9 equals to 11.11 percentage. 1 by 10 it is obvious. 1 by 10 percentage equals to 0.1. 1 by 11 equals to 9.09. 1 by 11 equals to this one 9.09, and in decimal form it is 0.9090. We have to write up to 4 decimal places so that if you multiply this into 100, so you will get percentage. Okay, so coming to the next. So coming to the next, 1 by 12 equals to 8.33 percentage, 0.833, 0.0833, and dash dash dash. 1 by 13 equals to 7.69. So this is the chart. We have to learn by heart this up to 20. This is very important as percentage. This relationship will be using in all the aptitude competitive examinations like SSC, CGL, IB, PSPU, CAT, and other MBA entrance examinations. Because we have to solve the questions in short interval of time. And actually, we can do easily any questions if we take time, but we have to solve in 1 minute or 2 minutes or half minute, whatever in short interval. Okay, this is called aptitude. We don't have to research in maths in higher examinations. So this up to 20, you have to learn by heart the decimal form and percentage. So just you take the note of this or screenshot of this two slides and learn. So हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे परसेंटेज का थोड़ी बेसिक पार्ट है इट इज फर्स्ट पार्ट वन ओनली वी विल अपलोड मोर वीडियोज अबाउट परसेंटेज or giving the more basic plus advanced and intermediate also. So it is just basic. We are just giving the basic. What is percentage? Percentage का meaning क्या होता है? Means 50% क्या होता है? 50% means what? 50 into 1/100 ये होता है. So इसको divide करेंगे 2 आ गया 1/2 आ गया. ये 50% है. 30% क्या है? 30/100 और 0.3. आप इसको कैंसिल कर सकते हो तो 0.3 आ गया. तो ये परसेंटेज हो गया. So just we will solve 3 to 4 questions and just get the overview how to attempt the questions of percentage in short manner. Okay.
So 20 liters of a mixture contains 20% of alcohol and the rest of water. I'm just getting the red pen. Yes. So 20 liters of mixture contains 20% of alcohol and rest is water. So total mixture is what? Total mixture is 20 mixture. 20 liters is total mixture. उसमें से क्या अल्कोहल है, क्या वाटर है? 20% इज अल्कोहल है, ठीक है, एंड रेस्ट इज वाटर, मीन्स 80% is water. Rest means what? 100 minus 20 is 80 percentage. So 20% of alcohol, 20% of that mixture is alcohol. इसका मीनिंग क्या हो रहा है? 20% into 20 liter. This is the question. 20% means 20/100. 20% क्या होता है? 1/5 होता है. ये हम लोग चार्ट से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे तो इजीली याद रहेगा. So, इसको कैंसिल हो जाएगा, आपका 4 लीटर आपका ये आया, ठीक है. सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? 80% of 20, that is 8 by ये हुआ. So 20 into 25 जो is 16. तो 16 लीटर आया. तो we don't need to find both. Why? Because अगर 4 लीटर आंसर आ गया, यहाँ पे 4 लीटर आ गया, तो ऑलरेडी 16 लीटर तो हो गया. कैसे आया? 20 minus 4, because rest is water. ये वाटर है, ये अल्कोहल है, ठीक है. तो 20 माइनस, जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए मैंने इसको सॉल्व किया, बट वी डोंट नीड टू सॉल्व बोथ पार्ट. एनी वन पार्ट वी विल सॉल्व एंड वी विल गेट ऑटोमेटिकली सेकंड पार्ट आल्सो. तो 4 लीटर हमारा अल्कोहल आ गया. ये मेजर टिप है और ट्रिक्स है. आपका मेन आंसर यही है. 4 लीटर आपका अल्कोहल आ गया, ठीक है. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ 4 लीटर्स ऑफ वाटर बी मिक्सड इन इट, if 4 liters of water be mixed in it, तो 16 प्लस 4 लीटर इसको हम लोग मिक्स किए कुछ टाइम बाद. टोटल कितना हो गया अभी? 20 लीटर वाटर. सो 20 लीटर वाटर अभी हो गया. 20 लीटर वाटर अभी हो गया प्लस 4 लीटर अल्कोहल है. ओके, सो टोटल हो गया 24 लीटर मिक्सचर. सो हम लोग को सॉल्व क्या करना है? व्हाट इज क्वेश्चन? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर? ये हम लोग हमारा क्वेश्चन है, ठीक है. इसको सॉल्व करने का अच्छा तरीका है, ये जो 4 लीटर है और ये 24 लीटर टोटल है, ये तो हम लोग को सॉल्व करना है. मीन्स परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन न्यू मिक्सचर इक्वल्स टू 4 लीटर अल्कोहल है और 24 लीटर टोटल मिक्सचर है. तो 4/24. सो परसेंटेज कितना में मांग रहा है? सो इंटू हम लोग को 100 करना होता है, तभी तो ये परसेंटेज आएगा. ओके, तो सॉल्व कीजिए. 1/6 हो गया. सो अब राइट नाउ व्हाट इज 1/6? आप देखो 1/6 क्या है? ये है 1/6. 1/6 मीन्स 16.67%. ओके, तो डायरेक्टली आप याद कर लिख सकते हो इजिली. 16.67% और 16 2/3
परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। ये आपका आंसर होगा। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The number that is to be added to 10% of 320, number that is added, that is to be added to 10% of 320, ये 10% is of 320 to have the sum as 30% of 20 to 30। सो हम लोग क्या सिर्फ स्टेटमेंट क्वेश्चंस को फ्रेम करना है स्टेटमेंट में, जैसे हम लोग एग्जाम स्कूल सिलेबस में पढ़ते थे वर्ड प्रॉब्लम्स, ये बस वर्ड वर्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, द नंबर दैट इज टू बी एडेड 10%, द नंबर सपोज n नंबर है, सो n नंबर को हम ऐड कर रहे हैं 10% ऑफ 320, 10% ऑफ 320, ये क्या है, हैव द सम ऑफ सम एज 30% एज इक्वल टू 30% ऑफ व्हाट 230। ये हमारा दिया हुआ है, हम लोग को सिर्फ n फाइंड करना है, तो हम लोग को ये फ्रेम करना है, ये हम लोग को फ्रेम करना है। एनी हाउ वी हैव टू फ्रेम दिस स्ट्रक्चर इफ द क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड। अगर इसको ऐसे देखेंगे अरे क्या पूछ रहा है ये, वी आर नॉट गेटिंग द क्वेश्चन, वी आर नॉट गेटिंग द आंसर, तो टाइम चला जाएगा। जो क्वेश्चंस में दिया हुआ स्टेटमेंट उसको डायरेक्टली लिख लीजिए इन फ्रेम करके वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप का, इसको इक्वेशंस के टर्म में, एंड जस्ट सॉल्व द इक्वेशन। हम लोग क्या निकालना है, एन निकालना है, एन इक्वल्स टू प्लस 10% ऑफ 320, 10% क्या होता है 1/10 होता है, ये हो जाएगा 32। देखिए सॉल्व कर देता हूँ, ये हुआ कट गया, ये भी कट गया, तो 32 बच गया। बिकॉज 10% 1/10 होता है, एक जीरो कम कर दीजिए हमेशा अगर 10% क्वेश्चन कर रहा है। अगर 1% क्वेश्चन कर रहा है तो 10th डिजिट तक उसको डेसिमल डाल दीजिए, मीन्स 3.2 हो जाएगा। सो 30%, 30% क्या है 3/10 हो इंटू 230, कैंसिल हो जाएगा, ये और ये इंटू हो जाएगा, तो 23 इंटू 3 क्या होगा 69। नाउ n इक्वल्स टू 69 माइनस 32, तो सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 7 and 3, ये आपका आंसर, सिंपल। द नंबर इज 37। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The income of A is 20% higher than that of B. The income of B is 25% less than that of C. And what is the percentage of A in terms of C? So हम लोग को A in terms of C, हम लोग को ये रिलेशनशिप निकालना है। पहले पहले A और B का दिया हुआ है और B और C का दिया हुआ है। सो B यहाँ पे कॉमन है, ये B कॉमन हम लोग करना है। ठीक है, ये अगर B कॉमन हो जाएगा हमारा तो मेरा आंसर आ जाएगा A और C के फॉर्म में। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, एक चीज़ आपको बताना जरूर चाहूँगा इसके पहले। अगर कुछ मेरे पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, 100 रुपीज़ का कुछ टॉफ़ी है डेयरी मिल्क है, उसका प्राइस अभी 20% नेस्ले कंपनी ने उसका, या जो भी कंपनी है वो प्रॉफिट, मतलब 20% उसका प्राइस हाइक कर दिया। कोई भी मेरे पास टॉफ़ी एनीथिंग 100 रुपीज़ है, उसका प्राइस 20% हाइक हो चुका है किसी कारण से, तो उसका वैल्यू भी क्या होगा 20% मीन्स क्या है 20/100। अगर 100 रुपीज़ है तो 20% मीन्स 20 रुपीज़। ठीक है, सिंपल जाएगा 120। अगर 1 रुपये है 20% इंक्रीज कर रहा है तो हो जाएगा 1.20। क्यों, बिकॉज 20% का मीनिंग क्या होता है 0.2, ये प्लस करना है मीन्स ये प्लस करना है, प्लस 0.2, सो 1 प्लस 0.2 क्या होता है 1.2। सो 20% है मीन्स 0.2, 0.2 ऑफ 100, 1 इंटू 0.2 इंटू 1, 0.2 तो होता है, बट यहाँ पे क्या होगा 0.2 इंटू 100 क्या होता है 20 होता है। दैट्स व्हाई वी हैव एडेड 20 एंड 100 इसको टू 120।
ठीक है। ये अभी क्या है उसको मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। इनकम ऑफ ए का इनकम कुछ होगा इज 20% हायर दैन दैट ऑफ बी। अभी देखिए मैंने बताया हाउ टू फाइंड 20%। हमारा 1.2 हो जाएगा, तो ए का 1.2 मीन्स 1.2 ऑफ बी। ठीक है, 20% हायर दैन दैट ऑफ बी। अगर बी 1 है तो ए का वैल्यू 1.2 हो जाएगा, बिकॉज ये 20% हायर है। एंड बी इक्वल्स टू क्या है 25% लेस देन दैट ऑफ सी। इसका हो जाएगा बता रहा हूँ मैं। अगर कुछ वैल्यू है 1 रुपये, 20% इसका घट गया, वैल्यू डिक्रीज हो गया, तो क्या होगा 20% क्या है मीन्स -0.2, तो -0.2 क्या होगा 0.8 हो जाएगा। इस तरह अगर 25% होगा मीन्स 0.25 माइनस करेंगे तो 0.75 हो गया, ये हो जाएगा 0.75। अब ये बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है क्योंकि कॉमन है, तभी हमारा रिलेशनशिप ये ए और सी के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर ए इक्वल्स टू 1.2, बी का वैल्यू क्या है 0.75 सी। अब ए इक्वल्स टू 1.2 इज सपोज 1.2 बाई 10 लिख सकते हैं हम लोग डेसिमल को। 0.75 क्या है 0.75, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.75 इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। सो 25% क्या होता है 1/4 होता है। इसको इंटू 3 करेंगे तो 75% होगा, इसको भी इंटू 3 करेंगे तो 3/4 होगा। तो ये सब आपको रिमेंबर करना होगा, ऐसे हम लोग को रफ करना होता है माइंड में, नॉट इन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट इन बोर्ड, बट वी हैव टू डू इन माइंड। वो प्रैक्टिस होता है, आपको प्रैक्टिस बहुत करोगे तभी होगा। 50% 1/2 होता है, 50 का हाफ क्या होगा 1/4 होगा। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, so ये हो जाएगा 3/4 इंटू सी, 4 इंटू 3 आपका आ गया ए इक्वल्स टू 0.9 सी, मीन्स 10% इज लोअर एस सी से। व्हाट परसेंटेज लेस इज एज इनकम, हमारा आंसर आई थिंक आ गया 10%। दिस इज योर आंसर। मैं ऐसे रफ रफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट यू हैव टू ऐसे भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो रफ ही सॉल्व करना है। मैं एक्सप्लेन करूँ बट ये वन वर्ड में आंसर आता है। ए इक्वल्स टू 1.2, बी इक्वल्स टू 0.75, 1.2 और इसको हम लोग को सब इंटू करना है, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन टुडे। Okay, to an examination a candidate needs 40% of marks, 40% of marks, ये आपका पासिंग मार्क्स है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ओके, a candidate just passed by getting 10 answers correct, 10 answers correct हुआ by attempting 15 of the total questions। how many questions are there in the examinations? सबसे पहले हम लोग को लेट करना है, लेट टोटल क्वेश्चंस बी x, 40% ऑफ x, ये क्या हो गया पास हो गया, पास हो गया। x इज क्वेश्चन, 40% ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व किए, सॉल्व करेक्टली, देन यू विल गेट पास। ये हमारा मेन यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है इस क्वेश्चन से। 40% ऑफ एक्स अगर हम करेक्टली सॉल्व किए मीन्स हम पास हो गए। इसका मीनिंग क्या हो रहा है
40% of x equals to 10 क्वेश्चन है राइट नाउ. वाई? बिकॉज 10 आंसर करेक्ट किया है वो और वो पास हो गया है. ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जस्ट पास्ट बाय गेटिंग 10 आंसर्स बाय अटेम्प्टिंग 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस. वॉट एवर, मेरे को क्या अटेम्प्ट किया समझते नहीं, बट 10 आंसर्स वो सही किया है, मीन्स 10 क्वेश्चंस को वो करेक्ट किया है, मीन्स ये जस्ट पास हुआ है. यहाँ पे आपका ट्रिक्स है, जस्ट इसको सॉल्व करना है. 40% क्या है? 40/100 2/5 ऑफ x इक्वल्स टू 10. ठीक है, x इक्वल्स टू 50/2 दैट इज 25. तो 25 क्वेश्चन हमारा आंसर. ये बहुत इजी क्वेश्चन है. ये सिर्फ क्वेश्चंस बहुत लंबा कर दिया है, लोग इसको देख के छोड़ देंगे, अरे क्या क्या पूछ दिया, दिख नहीं रहा है मेरे को. बट जितना लंबा क्वेश्चन होता है उतना इजीली बनता है. सो आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिकॉज विल कम बाई अदर video by uploading next part of this percentage. We'll go slowly basic, then intermediate, then advanced questions. Okay, I will give just tricks and tips and theory part also of percentage. So अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल. ओके, एंड कमेंट कीजिए कोई भी आपको डाउट्स है या कोई भी क्वेश्चन है, टॉपिक है जिसमें आपको चाहते हैं आप वीडियो में अपलोड करूँ मैथ्स का. एनी टॉपिक, एनी क्लास, 8, 9, 10, 12, कुछ भी आपको लग रहा है एप्टीट्यूड में, मैथ्स में स्पेशली, तो आप मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. ठीक है, ये हमारा चैनल है एंड क्लासेस है. इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द लाइव क्लास 1-to-1 क्लासेस, देन प्लीज़ विजिट द साइट और रेज एनी क्वेरी. ओके, थैंक यू.